तो अब मेरे साथ जुड़ गए हैं अनूप सोनी, दीपानिता, पौली धाम और राहुल देव कहीं चले गए हैं। राहुल आ गए हैं। तो राहुल, आप बता रहे थे कि रात रात जो होती है बहुत ही खास होती है, तो आपकी ये रात सब लोगों के साथ कितनी खास है? अरे बाकी अभी तो खास कहाँ है, अभी तो बहुत ही खास है और बाकी भी है। जी बहुत सारी रात बाकी है सर। जी तो लोगों को पता लगेगा कितनी बाकी है। जी जी। तो ये रात पे बड़े सारे हमारे बॉलीवुड गाने बने हैं, रात अकेली है, रात बाकी। तो क्या ऐसा होता है रात में, और आपकी इस प्रोजेक्ट में रात में क्या हो रहा है? सर इस रात में ये है कि एक हर रात ही एक नई कहानी लेके आती है वैसे तो लाइफ में। जी। तो इस रात की भी अपनी कहानी है। तो बस वो कहानी में क्या होता है सर, उसी के बारे में फिल्म है रात बाकी है। तो इट्स बेसिकली अ थ्रिलर, अ मिस्ट्री विद अ लॉट ऑफ मिस्टिक टू इट। और क्या होता है उस रात में सर, ये पता लग जाएगा हमें 16 को फिल्म देखने के बाद। जी। पावली, ये बताया, मुझे लग रहा है कि आप थ्रिलर स्पेशलिस्ट बन गई हैं। आपने हिट स्टोरी काली, तो आई थिंक ये जॉनर आजकल मोस्ट लव्ड है, खासकर जब से डिजिटल का दुनिया का आगमन हुआ है। सो हाउ मच ऑफ थ्रिलिंग इज रात बाकी है? For me, I love watching thrillers, and I think mostly people love watching it because of some, pace of the story, and also people get hooked into the story. कि कौन actually culprit है, कौन victim है, like they want to identify. They somehow I feel they relate to the thrillers much more than any other genre. लेकिन मेरा वैसा कुछ calculated move नहीं है. It's like thrillers come to me. Probably they also love me the way I love them. Like mutual वो बन गया है अभी. But when I got this script, रात बाकी है, which was originally it's taken from a play which is called Baliganj, and which Anup performed like for many years, and he was absolutely in sync with the character Karthik. Somehow I felt, since it is from like the crux of the story is from a play, and uske baad like it has been developed as a investigative crime murder mystery kind of, so wo ek alag flavor aa gaya hai story mein, and at the same time it still has its classical that feeling, that eternal kind of a feeling, that larger than life kind of a feeling, because that is the gist of the story. And वासुकी comes from a royal family, इसीलिए आप ट्रेलर देखे होंगे शायद। तो उसमें एक mystery element भी है। वासुकी is the mystery which needs to be solved, as I call her. And it's a very, I would say, like usually in thrillers they don't have much conversation where characters are engaged, through conversations. Yeah. So I felt the pace of this particular thriller is very different from the thrillers I have done before, and I think that's the USP. And also, like our director, he was used to do a lot of theaters, so वो जो थिएटर के बैकग्राउंड से आते हैं ना, उनका थोड़ा अलग होता है अप्रोच करने का तरीका. And I have to mention this, before each and every take, I had most of my scenes with Anup. So what Avinash used to tell us, like, this is your space, do whatever you want to, build up the choreography. At times he used to have his inputs also, but mostly it was improvised. Dialogues were improvised. And according to our movement, according to our choreography, the light, camera, everything was set. So वो theatrical space, बहुत मजा आया काम करके. I enjoyed it. Yeah. अनूप, आपको देखते ही वो आई एम श्योर जब आप मिलते होंगे, क्राइम पेट्रोल का आपने इतने कर लिए हैं, पीपल स्टिल आई थिंक दैट्स बिकम एन आइकॉनिक शो. But I know you as in the range of acting which you have done, and I think ये आपका play से adapted है. So is this project very close to your heart? Yeah, in a way, definitely, because जैसे हम कभी as an actor on screen कोई नया project करते हैं तो वो आपको offer होता है, आप उसकी script पढ़ते हैं. But ये play, चूंकि play perform करने से पहले भी महीनों उसकी rehearsal होती है, क्योंकि आप लाइव परफॉर्म करते हैं. तो मैं इस प्ले की जो कहानी है बेसिकली उसके साथ तो जुड़ा हुआ था फ्रॉम डे वन, बिकॉज नॉट ओनली जब ये प्ले मुझे ऑफर हुआ था, इसके इंसेप्शन से लेकर मैं इस प्ले से जुड़ा था, क्योंकि ये सिर्फ एक वन पेजर था जो मेरे प्ले के डायरेक्टर थे.
वो मैं भी उनके साथ काम करना चाहता था और वो भी मेरे साथ काम करना चाहते थे। तो मैंने उनसे यही कहा था कि मैं कोई फैमिली ड्रामा या कोई कॉमेडी प्ले नहीं करना चाहता हूँ। अगर प्ले करना चाहता हूँ तो कुछ ऐसा जो थिएटर में बहुत कम होता है। तो देन ही केम अप विद दिस आइडिया कि ये एक थ्रिलर का आइडिया है मेरे पास, एंड आई सेड यस लेट्स डू दैट, बिकॉज आपने देखा होगा थिएटर में थ्रिलर्स कम होते हैं, स्पेशली द मर्डर मिस्ट्री और सस्पेंस बहुत कम होते हैं, क्योंकि आपके पास डिवाइसेस वैसे नहीं होते हैं। सिनेमा में आपके पास वो एक टेक्नोलॉजी होती है जिसकी वजह से आप एक मर्डर मिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। सो प्ले के साथ बिल्कुल जब से स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तब से जुड़ा हुआ था। लेकिन जब ये फिल्म बनना इसका तय हुआ तो डेफिनेटली ये जरूर डिसाइड किया गया कि विजुअली इट हैज टू लुक मच बिगर देन द प्ले, बिकॉज प्ले क्या होता है, एक स्टेज पर होता है, एक वाइड शॉट है आपके सामने जहाँ ऑडियंस लाइव आपको बैठकर देख रही है। प्ले में कैरेक्टर भी सिर्फ पाउली का कैरेक्टर और जो मेरा कैरेक्टर है वही प्ले में थे, 2 कैरेक्टर। तो जब इसे सोचा गया कि फिल्म बनाई जाए तो ये जरूर क्लैरिटी रखी गई कि फिल्म का प्लॉट और आइडिया लेकर फिल्म को ऐसा बनाया जाए ताकि वो इंट्रीगिंग, ग्रिपिंग हो कि ऑडियंस, नहीं तो क्या है कि ओटीटी पे भी 10 मिनट के अंदर अगर हमारी ऑडियंस में एंगेज नहीं होती है तो हो सकता है वो बंद कर देंगे और किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो जाएंगे या किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे। सो पहला एम और पहला अटेम्प्ट जब इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी फिल्म के लिए, तब यही था सबसे बड़ा कि कैसे भी करके इसको ऐसा एक शेप देनी है, ऐसा एक नरेटिव स्टाइल देना है कि ऑडियंस छोड़े ना, तो वो इसमें इतना इन्वॉल्व हो जाए। तो आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन द टीम ऑफ Z5 एंड आवर राइटर सिद्धार्थ मिश्रा, उन लोगों ने काफी इस पे काम किया, काफी इनपुट्स थे, फिर उसके बाद रीडिंग सेशंस में भी काफी इनपुट हुए। तो फाइनली जो स्क्रिप्ट हमने शूट की, हमें लगा कि हाँ चलो ये एक ऐसी स्क्रिप्ट अब तैयार हो चुकी है जो ऑडियंस को काफी एंगेज रखेगी टिल द लास्ट सीन। दे विल वेट कि यार ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, जो एक हू डन इट में होता है जी। और इसके अलावा आप और राहुल हैं और पाउली खूबसूरत, और उससे भी वन ऑफ माय फेवरेट दीपानिता, इनकी मैं कल ही फिल्म देख रहा था, लेडीज वर्सेस रिकी बहल, एंड आई रियली की दीपानिता शुड बी मोर। कहाँ आप चली गई थी, मैं चाहता हूँ कि आप रहें, आप इतनी अच्छी आपकी पर्सनालिटी है, सो वेलकम बैक दीपानिता। तो थैंक यू। तो व्हाट एग्जैक्टली आर यू एडिंग टू द स्टोरी ऑफ रात अकेली, रात बाकी है? रात बाकी है जी। तो हाँ, मैं यही कह रही थी कि रात बाकी मेरे कैरेक्टर की वजह से है, क्योंकि शुरुआत मेरे कैरेक्टर से होती है, जैसे आपने ट्रेलर में देखा होगा। और मुझे ये प्लॉट बहुत अच्छी लगी। आई साइन दिस प्रोजेक्ट राइट आफ्टर लॉकडाउन, पहला प्रोजेक्ट था जो मैंने साइन किया, आउटडोर भी था। तो प्लॉट इसलिए अच्छी लगी क्योंकि मैं भी, जैसे पाउली कह रही थी, आई एम आल्सो थ्रिलर फैन एंड अ ह्यूज थ्रिलर फैन, यू नो। और इतना मैंने कंटेंट देखा है फ्रॉम से 1930s 40s से लेकर अब तक, that I know that it's very difficult to you know, make a whodunit or a murder mystery in today's times, and I saw that special thing in this plot, you know, that people will be intrigued and लोग देखना चाहेंगे कि कैसा हो, क्योंकि ये आसान नहीं है एक्चुअली to you know, create and make a murder mystery in today's times। और इस स्क्रिप्ट में वो स्कोप है और बहुत इंटरेस्टिंग नैरेटिव है, जैसे अनुप ने कहा, एंड आई थिंक इट्स द नैरेटिव दैट मेक्स इट वेरी वेरी स्पेशल। और मेरा किरदार बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस प्लॉट का। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग ensemble, you know, and amazing actors and a great team। राहुल, मैं जानना चाहूँगा, जब हम छोटे हुआ करते थे 90s में, जितने ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे, कोई फिल्म आती थी वुड एंड तो सब गेस करते रहे पता है मर्डरर कौन है। तो हमेशा ये नो, जैसे कहते हैं सदियों से ही ये जॉनर जो होता है, नो, इट्स वेरी इंट्रीगिंग। तो क्या लगता है थ्रिलर, जैसे अभी पाने का कि बड़ा मुश्किल होता है बनाने में, लोगों को तो बस मर्डरर एंड में हो गया, वो खत्म हो गया, लेकिन जो उसके पीछे मेहनत, कैरेक्टर्स का सब जो घुमाव फिराव होता है, व्हाट डू यू फील राहुल? I think it's a writer's medium more, like a thriller। अगर इसका लेखन सही ढंग से हो जाए और सही फास्ट फ्लो करे, so then you like, you know, कहानी को देख लीजिए या कोई भी आप फिल्म देख लीजिए जिसमें एक बार, क्योंकि ना आई फील पर्सनली कि इसमें उतना रिपीट नहीं होती है बात, जैसे कि एक कॉमेडी की होती है हल्की फुल्की, कहीं से बीच में से देख लिया,
थोड़ा आप लंच कर रहे हैं और दोबारा से कहीं से भी देख ली, कोई रोहित शेट्टी काइंड ऑफ फिल्म जो है, तो इसमें ये होता है कि एक बार वो तीर निकल गया और एक बार आपको लगा कि निशाने पे कहाँ जाके लगा है, then you know where it's hit. Then you know, a lot of times you might still want, like मैंने कहानी कई बार देखी है, एक मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं डेविड फिंचर, उनकी कई चीज़ें मैंने कई बार देखी, बट कह नहीं सकता कि सबका यही टेस्ट होता है। और दूसरा ये कि इस पर्टिकुलर कहानी का जब मैंने पढ़ा है उसको, जब स्क्रिप्ट आया था, तो इट वाज वेरी फास्ट। तो इस पे ना, जैसे अनूप ने पहले भी मेंशन किया, आई थिंक जो भी थिंक टैंक है इसमें, क्योंकि ठीक है लिखता है एक इंसान है, मगर क्या होता है इनपुट कई लोगों का होता है। जी जी। हर मतलब क्रिएटिविटी का भी एक सिक्यूशन नहीं कर सकता आदमी, मतलब एक सोलो परफॉर्मेंस नहीं होता किसी भी क्रिएटिविटी का, एक ऑलवेज कोलैबोरेटिव रहती है। और तो मुझे लगता है कि it'll be fine, it's going to be fast। और मुझे भी जब पढ़ रहा था तो ऐसा पता नहीं लग रहा था, ऑफ कोर्स एक पॉइंट पे जाके तो कहानी है तो पता ही लगेगा कि क्या हो रहा है। सो आई थिंक इस वाली जो फिल्म है, इसका जो मेन हीरो है वो कहानी रही, यू नो, जो उसका मेन मतलब मुझे लगता है मुख्य भूमिका या जो भी है, जो भी इंटरेस्ट लेवल है, वो कहानी को लेके, और फिर वो कैसे क्यों क्या हो रहा है वो जानने के लिए उत्सुक होंगे लोग इस वाली कहानी के लिए। सो आई थिंक that's the biggest positive and plus point this story has। पावली, हमेशा अगर मैं बंगाल इंडस्ट्री की बात करूँ, ब्योमकेश का नाम आता है, जो इट्स बीन इंस्पायरिंग लॉट ऑफ फिल्म मेकर्स, लोग एल्फ्रेड हिचकॉक की बात करते हैं, बट व्हाट डू यू सी द इम्पैक्ट ऑफ ब्योमकेश इन थ्रिलर्स इन बंगाली सिनेमा एज वेल एज हिंदी सिनेमा? दैट देसी ऑन जासूस who solve all जैसे जाता है, तो हमारी कल्चर में ब्योमकेश का कितना बड़ा रोल है थ्रिलर जॉनर में? Of course, बहुत ज़्यादा है। Like we are used to watching like Sherlock Holmes, right? Yeah. And we are used to seeing Sherlock Holmes in a certain attire and get up, the look. What we like about Byomkesh is, of course, again the look, the structure, and his kind of the aura, and dhoti, and he wears dhoti and like a desi jasoos, like a desi jasoos, that where I find him a figure which is like larger than life, yet so close to reality. Okay. So yes, something that we all can relate to. It's not like Byomkesh को देखकर वो नहीं लगता है कि he's a very alien guy. Yeah. Somebody who is approachable. So Raat Baki Hai, this story, I'm just coming back to our film. So this is a story which I felt which has that quality, which people will be able to relate to each and every character because they are so real. It's a human story after all. Yeah. Everybody has a grey area. It is not black and white. So that's what I also liked about Vasuki, that she's so real yet so mysterious. So yes, I think Raat Baki Hai, yes, I think people will enjoy this mystery element in spite of being so real. अनूप, रात बाकी है में ज़्यादा मिस्ट्री हम खोल नहीं सकते, ज़्यादा बातें करेंगे तो पत्ते खुल जाएंगे, लेकिन तो अनूप ये बताएं तो अनूप आप बताएं कि क्या लगता है, हम कितना स्टैंड करते हैं? हमेशा लोग हॉलीवुड की तरफ देखते हैं, इस फिल्म का अडैप्टेशन बन रहा है, उस थ्रिलर का अडैप्टेशन बन रहा है, इसका बन रहा है, लेकिन हमारे देश में भी बहुत अच्छी थ्रिलर्स बनी हैं। तो हमारे अगर देश की बात की जाए अनूप, तो कौन कौन सी थ्रिलर्स है जो आपको अच्छी लगती हैं? दे आर लाइक बेंच पे। अभी राहुल ने कहानी का नाम लिया, सम रियली एक्सीलेंट सिनेमा व्हिच ऑल कैन लुक फॉरवर्ड टू। व्हाट डू यू थिंक, हाउ मच कंटेंट रिच आर वी आर इन थ्रिलर्स इन इंडिया? जैसा अभी पाउली ने कहा कि कोई भी थ्रिलर हो, लेकिन जब तक वो इमोशनली ड्रिवन नहीं होगा ना, तब तक उसका, अगर वो एक फ्लैट इमोशनलेस स्टोरी है जिसके अंदर हाँ ठीक है खून हुआ है और खून को एक इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो रात बाकी है वो नहीं है। रात बाकी है में चाहे वो दीपानिता का कैरेक्टर हो, चाहे वो राहुल का कैरेक्टर हो, पाउली का हो, मेरा हो, अपार्ट फ्रॉम द होल थीम ऑफ मर्डर मिस्ट्री, देयर इज लॉट ऑफ इमोशन बिहाइंड दिस। हर आदमी के अपने अपने रीजंस हैं। राहुल जो है वो सिर्फ एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं है, उनके अपने भी कई स्ट्रिंग अटैच्ड हैं
उनके किरदार के और कई चीजों के साथ दीपानिता की सिर्फ ये नहीं है कि उनका मर्डर हो गया और उनके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पत्ते खोल दिए, कई लेयर्स हैं। सो मेरे नहीं, वो तो पता है, वो ट्रेलर से लोगों को पता है कि दीपानिता का ही मर्डर हुआ है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इमोशनली ड्रिवन जब एक स्टोरी होती है ना, तो लोग ज्यादा उससे जुड़ते हैं, उस मर्डर मिस्ट्री से भी। तो हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी बनी है, जैसा हम पिछले इंटरव्यू में भी बात कर रहे थे। मुझे श्रीराम राघवन जो हमारे इंडियन फिल्म मेकर हैं, उनका काम बहुत अच्छा लगता है, उनके थ्रिलर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जिस तरीके से उनका स्टाइल ऑफ कहानी सुनाने का जो अंदाज है, जो नैरेटिव स्टाइल होता है उनका, वो किस तरीके से गाने बहुत यूज करते हैं। अगर आप नोटिस करें कि मतलब उनका ये होता है कि वो फिल्मों में बहुत ज्यादा हिंदी फिल्मों के सॉन्ग्स उसमें थीम के मूड के हिसाब से यूज करते हैं, जो उसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। दूसरा, मैंने पहले भी मेंशन किया कि शुरुआती दौर में जब मैंने ये शो होस्ट किया था क्राइम पेट्रोल, कुछ ऐसी केसेस मेरे सामने आए थे जिनको देखकर ऐसा लगता था कि माय गॉड, के इंसानी दिमाग जो है वो किस तरह से प्लानिंग कर सकता है। तो कुछ एपिसोड्स क्राइम पेट्रोल के ऐसे हैं जो आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मर्डर प्लान कैसे किया और कैसे इसने एग्जीक्यूट किया और पुलिस ने उसमें ब्रेक थ्रू कैसे हासिल किया। So I'm sure we have a lot of good directors who are working on this kind of a genre and murder mystery. But रात बाकी है के बारे में मैं इसलिए पॉजिटिवली कहता हूँ क्योंकि इसमें बहुत कुछ है, इसमें लेयरिंग बहुत है, हर किरदार की अपनी एक कहानी है, हर किरदार का अपना एक इमोशन है, उसका रीजन है। सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि एक मर्डर हुआ और उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और आप देखिए बताइए कि किसने खून किया, ये वो नहीं है, उससे ज्यादा है रात बाकी। जी, तो दीपानिता, जैसे इसी बात का बस मैं समझ जानना चाहूँगा कि हमने कहा कि वाई टू लुक एट द वेस्ट, वी हैव सो मच स्टोरीज, सो मच थिंग्स वी कैन लुक फॉरवर्ड टू। हमारा हिस्ट्री इतना अच्छा है, आई एम श्योर इतना सारी कहानियाँ बन रही हैं आपका प्रोजेक्ट। सो व्हाट डू यू थिंक, how content rich is India and the Indian, especially Indian OTT players जो आजकल चल रहा है पूरा? We are extremely content rich actually. हम लोग content rich मतलब आज तो चलिए OTT platforms है तो content की इतनी demand है, कि सबको अलग अलग चीजें देखनी होती है। And when I switch from one OTT to another, I'm like, my God, there is so much amazing writing, there is there's so much of fabulous sort of creativity, पर मैं ये कह रही हूँ कि when it comes to writing and creativity, I think हमारे तो 30s 40s से बहुत अच्छे अच्छा content in terms of that time तो उस वक्त सिर्फ फिल्में थी, बड़ा पर्दा, but writing में वो talent में कभी कमी नहीं थी, when it comes to creation. Yes, we have gone through phases where we have we have not created great content, but वो भी एक डिमांड होता है शायद कि इस वक्त यही चलेगा, वो भी होता है। पर मैं कह रही हूँ थ्रिलर्स का मैं कहूँ तो मैं कानून से शुरू कर सकती हूँ, जो ब्लैक एंड व्हाइट कितनी बढ़िया महल ahead of its times, Madhubanti. Madhubanti, yes, Madhubanti, like and Kanun for me, because when I see it, na gaane na kuch, it was just like a thriller from beginning to end, and it was a gripping thriller, फिर I was just talking about it कि विजय आनंद जो बनाते थे thrillers, वो बहुत ही, श्रीराम राघवन in fact himself says that he's inspired by Vijay Anand and James Hediches actually. तो हाँ, I think when it comes to thriller writing or any kind of writing or creating content, हम लोग वेस्ट से पीछे नहीं है. It is just about getting a platform, I think, and which is where I feel again I'm coming back to our film Raat Baki Hai. I hope and we keep our fingers crossed that we come out trumps, क्योंकि इसमें है वो सारे elements, Yes, so I think कि इतना अच्छी स्टारकास्ट है, स्टोरी है और इतना अच्छा, so I think एक one more good thriller waiting. Thank you so much and आप stay tuned नहीं कि आखिर दीपानिता के कैरेक्टर का खून किसने किया जब खोलेंगे. So that's what is happening. हाँ, वही जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा वो. So thank you so much to all of you. Hope you had a safe time because right now हम इस दौर से गुजर रहे हैं.
You guys stay safe and we all pray कि आपकी फिल्म से लोग भूल जाएं जो घर में कैद हैं, वो देखें और सब भूल जाएं टेंशन. So all the best and thank you so much. Thank you very much. Thank you for having us. Abhay. And all the best to you. Thank you so much. Thank you.